تو ہم بات کر رہے ہیں پردے کے حوالے سے اور لگاتار اس طرح کے مدعوں کو ہم اٹھا رہے ہیں جن سے کہ سماج میں ایک بیداری آئے اور کنفیوژن جو سماج کا ہے وہ دور ہو۔ بریک سے پہلے مولانا صاحب نے بتایا کہ پردے کا حکم ہے اور میں نے بار بار جب ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کو لے کر بھی ہے۔ اب وہ کلیئر اور میں ان سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ چہرے کے کن اعضاء کن حصوں کو لے کر ہے۔ بہرحال کچھ صبحی جی کو اعتراض تھا، ان کے پاس میں آنا چاہوں گا۔ صبحی جی، آپ نے بتایا کہ تعلیم اور ترقی میں یہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ اگر حجاب نقاب ہے تو ہے نہیں، لیکن اگر برقع ہے تو آپ کے مطابق ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ چہرے کو حوالے سے میں بہت زیادہ پوچھنے کی بار بار کوشش کر رہا تھا کیونکہ برقع تو چہرے کو لے کر ہی مین ہے نا، پورے شریر کو لے کر تو ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن چہرہ ڈھک جاتا ہے، اس کو لے کر کے خواتین کو لگتا ہے کہ ان کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ جی دیکھیے عمران، میرا جو میں آبجیکٹ کرنا چاہ رہی تھی، میں یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ میں پردے پہ برقعے پہ بہت ٹائم سے سٹڈی کر رہی ہوں، قرآنک ریفرنس میں، قرآن کی روشنی میں مجھے ایک بھی سورہ، ایک بھی آیت قرآن شریف میں ایسی نہیں ملی جو چہرہ ڈھکنے کی بات کرتی ہو۔ اگر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ آپ چہرہ کریے اور اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ اسلامک پرنسپلز کے حساب سے غلط کر رہی ہیں، تو مجھے پلیز آپ اس سورہ یا اس آیت کی ریفرنس تو دے کر بتائیے کہ کہیں پہ بھی مینشننگ ہو کہ چہرہ کورنگ ہے۔ چہرہ کورنگ کہیں نہیں، آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجئے، اسلام میں کوئی بھی چیز illogical نہیں ہے۔ عمران، میں آپ کو پلیز یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو پروفٹ کے ٹائم تک، جب پروفٹ نے جو ان کا آخری خطبہ تھا وہ بول کے گئے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا ریلیجن کمپلیٹ ہے۔ اب ان کے جانے کے بعد اسلامک پریکٹسز میں جو بدعت آ گئی، جو انوویشنز آ گئیں، انہی چیزوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسپیشلی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ 1970s 1980s میں وہابزم، سلافزم کر کے جو ایک موومنٹ سٹارٹ ہوا تھا، ریلیجس جو الٹرا کنزرویٹو موومنٹ سٹارٹ ہوا تھا، انہوں نے ری انوینٹ کیا اسلام کو۔ میں جتنے بھی پڑھے لکھے مسلمز ہیں ان سے پلیز اپیل کرتی ہوں کہ پلیز پڑھیے، وہابزم کے بارے میں پڑھیے، سلافزم کے بارے میں پڑھیے۔ وہ یہ بولتے تھے ہم اسلام کو پیوریفائی کریں گے، اور وہ پیوریفائی کرنے کے چکر میں ایک الٹرا کنزرویٹو انٹرپریٹیشن دی انہوں نے، جو کہ پوری دنیا، سعودی سے سٹارٹ ہوا تھا، KSA سے سٹارٹ ہوا تھا اور پوری دنیا میں آج کی ڈیٹ میں پھیل چکا ہے۔ تو اس میں ایک پیٹریارکل پریکٹسز بھی ہیں اس طریقے کی، آپ برقع پہن لیجئے، آپ نقاب کر لیجئے، عورتوں کو گھر میں بیٹھا دیا ہے ان لوگوں نے۔ حالانکہ پروفٹ کا، میں نے پچھلی ڈیبیٹ میں بھی آپ کو بولا کہ پروفٹ تو عورتوں کی بہت ایکسپلیسٹ رائٹس اسٹیبلش کرتے تھے۔ فیمنسٹ میں ان کو مانتی ہوں کہ وہ عورتوں کے ادھیکار کے لیے لڑتے تھے، گھر کے کام بھی اپنی بیوی کے، اپنے گھر کے کاموں میں وہ ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو پروفٹ تو بہت ایک جینڈر ایکوالٹی کی بات کر، انفیکٹ عورتوں کو مجھے لگتا ہے آدمیوں سے بھی زیادہ وہ درجہ دیتے تھے عزت کے معاملے میں، سمان کے معاملے میں۔ لیکن جو یہ کنفیوژن سٹارٹ ہوتا ہے، میں یہ بولتی ہوں کہ پلیز اگر آپ بول رہے ہیں کہ نقاب ہے، اگر چہرہ ڈھکنا اسلام میں آئے تو پلیز مجھے قرآن کی روشنی میں بتائیے مفتی صاحب، کون سی سورہ، کون سی آیت میں نقاب کا ذکر ہے؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی بیٹی خاتون جنت تشریف لائیں، ردائے مبارکہ ان کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، رات کے عالم میں آئیں۔ میرے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ایسے آئی۔ کہا کہ تمہاری چادر چھوٹی تو نہیں؟ کہا یا حبیبی یا رسول اللہ میری چادر چھوٹی نہیں۔ کہا کہ تھوڑا سا آگے کو کر لیتی تاکہ یہ بھی چھپ جاتا۔ تو یہاں لفظ چھپنا میرے آقا نے، دیکھیے ہر چیز ہر چیز اگر آپ قرآن سے ثبوت مانگیں گی تو وہ قرآن میں ثبوت اس کا نہیں ملے گا۔ آپ کسی حدیث کا ذکر کریں، حدیث نبوی سے بھی استخراج کی جاتی ہیں، جیسے کہ لفظ برقع پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، جیسے ردا کا لفظ ملے گا اور ردا کا وہی ہے۔ تو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتی ہے مسلم خواتین کہ میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھوں تو یہ اس کی اعلیٰ ترقی کی بات ہے اور اعلیٰ تقوی کی بات ہے، اس کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اور اگر میری کوئی ماں بہن اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتی، اصلی حیا میں نے بار بار زور دے کر کے کہہ رہا ہوں وہ نگاہ ہے، کان بھی نہیں، وہ نگاہ ہے۔ اگر نگاہ اگر صاف ستھری ہے تو کوئی بھی ہوگا، بہت سارے شرائع وسوسوں کا جنازہ نکل جائے گا اور عزت و عافیت محفوظ رہے گی۔ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، شبنم جی آپ نے سنا، کیا کہیں گی؟ دیکھیے وہ تو ہم سے زیادہ عالم فاضل ہیں، جو بتا رہے ہوں گے، ان کی بات پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن ہم نے جتنا اپنے حساب سے پڑھا اور سمجھا تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام دھرم پروگریسو دھرم ہے، سب سے زیادہ پروگریسو، سب سے بہتر۔ اور حضور کہہ کر گئے ہیں، جو پروفٹ محمد ہمارے کہہ کر گئے، پڑھائی کے لیے چائنا بھی جانا پڑے آپ جائیے، بے شک صحیح ہے، کہہ کر گئے۔ سماج جس دیش میں آپ رہتے ہیں اس دیش کے قانون کو مانیے، یہ بھی حضور کے ہم فالوور ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں۔
हमें बिजनेस करने के लिए वो ही सिखा कर गए कि विमेन को आप उस समय की बात और इस समय की बात में थोड़ा सा तो आप गैपिंग देखेंगे कि भाई कितना गैप है। हुजूर के टाइम में महिलाओं का कुछ और मामला था, आज के टाइम में महिलाएं कहीं और आगे बढ़ चुकी हैं। तो हुजूर ने कभी पीछे के जाने के लिए नहीं कहा औरतों को। तो जब हम उनके फॉलोअर हैं, वो अपनी वाइफ से तिजारत करवाते थे, मेरे वर्ड नहीं है, आप भी खुद भी बता रहे हैं, कोई हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया औरतों ने। हर चीज में जब औरतों का सम्मान बड़े तरीके से था, तो आज आप हमें ये वाला काम नहीं कर सकती, परफ्यूम नहीं लगा सकती, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये मौलानाओं का बताया बता रही हूँ इमरान भाई आपको। परफ्यूम लगा लिया तो हराम हो जाएगा, औरत ने अगर मेहंदी लगा ली तो हराम हो गया, इन दिनों में अगर यहाँ खड़ी हो गई तो हराम हो गया। मतलब सारी चीजें जो प्रॉफिट मोहम्मद हमें आगे बढ़ा कर गए थे, आपने हमें कहीं ना कहीं पीछे लाने का काम किया। हिजाब भी अब आप देख रहे हैं कि हिजाब का भी सबके सामने कुरान शरीफ की रोशनी में है क्या? बिस्मिल्लाह। देखिए, जो मेरी बहन कह रही हैं बहुत बेहतर है। मजहब इस्लाम में इरशाद फरमाया कि औरत बन सवर के रहे जब उसका शौहर उसके घर में आए। जब वो अपनी बीवी की देखे तो उसकी तबीयत खुश हो जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा है, बड़ा मजबूत है, पूरी दुनिया जानती है। फरमाते हैं कि बन संवर के रहो। अब बनने संवरने में किस किस चीज की जरूरत हो सकती है वो आप जान सकते हैं। सिंगार करो, साफ सुथरी रहो, जाके आपका शौहर आए जब आपको देखे तो उसकी तबीयत। इमरान भाई, अब समय बदल गया, और नौकरी करनी है आपको, समय बदले, वक्त बदले, कानून बदले, मजहब इस्लाम नहीं बदलता। औरत को वो उन्होंने कहा ना, शबनम जी पहले ही कहा था कि नौकरी करो, तिजारत करो, आगे बढ़ो, उसको लेके कोई रोक थोड़ी है। हदीसे मुस्तफा ने दिए। औरत वो अजीम ताकत है। आप हुजूर के टाइम की बात करेंगे और आज के टाइम की बात करेंगे तो हुजूर ने आज के टाइम के हिसाब से आगे चलने को कहा है। औरतों को चीज है, बड़ी मजबूत चीज है औरत। नहीं, ठीक है, लेकिन जी औरत वो काम कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकते। और आका ने फरमाया जिस घर में बच्चियां नहीं होती उसमें बरकत नहीं होती। कितनी बड़ी हदीसे मुस्तफा है। और आज हम देखते हैं अपने माशरे में जिन घरों में लड़के ही लड़के हैं उनमें अजीब वो होती है बेकैफियत, ना रौनक है, सूखापन होता है। लेकिन जिन घरों में बेटियां हैं उनके माँ बापों से जाकर के पूछो, कहते हैं वो थोड़ा कमाता है लेकिन बरकत होती है। ये बरकत है उस लड़की के वजूद की। आका ने इरशाद का फरमाया था, मजहब इस्लाम से पहले औरतों को, लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, दरगोर कर दिया जाता था। आका ने ऐलान फरमाया था, हे लोगों, जिसने कलमा पढ़ा है, मेरे हाथ पर बैत की है, औरत को, बेटी को जलाया नहीं जाएगा। जिस घर में बेटी है वो इज्जत का सामान है। खुदा की रहमत होगी, खुदा की बरकत होगी, जो चाहोगे वो रब अता फरमाएगा। बच्ची दिल का टुकड़ा है, जान का सुकून है, रूह इत्मीनानी है, फरहत व मसरत का जरिया है। इसको राजा होने ना दो, इससे इतनी मोहब्बत करो कि हुजूर का यही वाला मैसेज आपको देना था। ये सब आका ने इरशाद फरमाया। कोई मौलवी अपनी तरफ से बयान नहीं कर सकता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये टाइम बड़ा महदूद रहता है। औरत का जो मकाम बेशक मेरे आका ने दिया है, अहादीस में दिया है, वो किसी शक का नहीं है। हजरत आयशा की जिंदगी देखो, हजरत मैमूना की जिंदगी देखो, हजरत खदीजा की जिंदगी देखो, हजरत ज़ैनब की जिंदगी देखो, हजरत उम्मे कुलसूम की जिंदगी देखो। इन औरतों ने जंगें भी लड़ी हैं, शहादतें भी की हैं, और मरहम व पट्टी का काम भी आपके पास आना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है, इस्लाम ने औरतों को बड़ा दर्जा दिया है और बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आप उनके हुकूक को भी देख लीजिए और बहुत सारी चीजों में उनके हक बहुत अहम है। लेकिन सुबह हम ये भी जानते हैं कि पर्दा औरत की मर्जी या उसकी आज़ादी, इसको भी देखकर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आज एक मूवमेंट भी है कि माय हिजाब माय प्राइड, इस तरह की मूवमेंट है। औरतें चाहती हैं, यूरोप में भी जहां पर कुछ मुल्कों ने बंदिश भी लगाई हुई है, या फ्रांस वगैरह में जहां पर बंदिश है पर्दे को लेकर के, उन्होंने उसके खिलाफ भी मूवमेंट चला रखी कि हम चाहते हैं पहनना, हम पर्दा करना चाहते हैं। तो इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं? ये भी तो अपने आप में आज़ादी है, वो उसकी उस आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। जी इमरान, देखिए मैं हमेशा ये मेंटेन रखती हूँ कि जैसे एक महिला की साड़ी पहनना एक चॉइस हो सकती है, ऐसे ही उस महिला की हिजाब करना भी चॉइस हो सकती है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से हिजाब कर रही है, और प्लीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, मैं हिजाब की बात कर रही हूँ। आप किसी भी कंट्री में जाइए, देखिए जहां हिजाब बैन कर रहे हैं उसको मैं बिल्कुल गलत मानूंगी कि अगर आप मॉडेस्टली ड्रेस्ड हैं और आपने सिर्फ अपना सर कवर किया हुआ है, उससे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं छुप रही है। आप एक समाज में प्रॉपर एक मॉडेस्ट वे में और एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न वे में काम कर सकते हैं। हिजाब बैन मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री में हो रहा है। कंट्रीज में बैन हो रहा है बुर्का।
आप ये भी देखिए कि किसी भी पंथ को उठा के देख लीजिए, आप सरदारों को उठा के, सिख्स को उठा के देख लीजिए, आप क्रिश्चियंस को उठा के देख लीजिए, आप हिंदुओं को उठा के देख लीजिए, आइडेंटिटी कवर करना किसी भी पंथ में नहीं है। ये सिर्फ एक इस्लामिक टीचिंग को ही मैनिपुलेट कर दिया, वही जो मैंने आपको बताया वहाबिज्म और सलाफिज्म ने, जो एक बुर्का ले आए हैं, बुर्के की आड़ में कितने गलत काम भी होते हैं। हमें एक एज अ सिटीजन ये भी देखना चाहिए, कितने अभी हमने इलेक्शंस में देखा वोट डालते हुए लोग दिखे बुर्के में, कितने टेरर एक्टिविटीज हो जाती हैं, आइडेंटिटी कवर करके लोग जाते हैं। तो चेहरा कवर करना, आइडेंटिटी कवर करना कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में पॉसिबल आज के टाइम में नहीं हो सकता है। आप नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए। मुफ्ती साहब मुझे कुरान की रोशनी में तो नहीं जवाब दे पाए, कह रहे हैं कि हर चीज का जवाब आप कुरान में ढूंढे। वो हदीस के हवाले से दे रहे थे। एक चीज और मैं कुरान मेंशन करना चाहती हूँ इमरान, एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहती हूँ रसूलुल्लाह की सीरत के हवाले से कुछ जब मैंने प्रॉफिट के लास्ट खुतबे का जिक्र किया, प्रॉफिट ने अपने लास्ट खुतबे में क्यों ये बोला कि तुम्हारा दीन यहाँ पे मुकम्मल है, मैं तुम्हारे लिए किताब छोड़ के जा रहा हूं, अगर कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब तुम्हें इस किताब में मिलेगा। ये प्रॉफिट ही बोल के गए हैं। तो जब हम कुरान को मानते हैं, हम प्रॉफिट को मानते हैं, देखिए ऑथेंटिक हदीस है लेकिन कुछ हैं। एक चीज मैं बताऊं, 1400 से ज्यादा फैब्रिकेटेड हदीस भी हैं इमरान। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट के बाद के जो कैलिफेट सिस्टम आया, बहुत से लोग आए, कितनी सदियां, डेकेड्स गुजर गई हैं, सेंचुरीज गुजर गई हैं, बहुत सारी फैब्रिकेटेड हदीस भी हैं, बहुत सारे ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो बुर्का विद नकाब, ये ब्लैक जो गारमेंट बुर्का आया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसका इस्लाम से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। हिजाब अगर कोई लेडी अपनी पसंद से करना चाहती है, मॉडेस्टली ड्रेस, सर कवर, स्कार्फ, मोस्ट वेलकम, उसमें कोई मनाही नहीं है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी कंट्री को फॉलो करते हुए कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, किसी संविधान के खिलाफ नहीं है, आपको तरक्की करने से, एजुकेशन से रोकता नहीं है वो। लेकिन बुर्के के मैं सख्त खिलाफ हूं और नकाब के मैं सख्त खिलाफ हूं। ना वो इस्लामिक प्रैक्टिस है और ना ही किसी सभ्य और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में बुर्का मुझे लगता है कि आज के टाइम में होना चाहिए। इस बीच हमने जितनी भी खवातीन से बात भी की थी और दिखाया भी था उनको, वो तमाम लोग नकाब में थी। बहुत सी उन लोगों ने उन्होंने नकाब पहन रखा था, बुर्के में शायद ही कोई थी। तो नकाब को लेकर ही वो बात रख रही थी। हिजाब जिसको कहते हैं, नकाब, और ये जो चादर का रिवाज है जिसको रिदा कहते हैं, उसको लेकर के वो अपनी बात रख रही थी। हम बुर्के को भी इसमें शामिल कर रहे हैं और उसके बारे में भी लोगों से राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा हम बात कर रहे हैं पर्दे को लेकर के, पर्दे के हवाले से बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं और शबनम खान भी मेरे साथ है। शबनम, आप तो महिलाओं के बीच में लगातार काम कर रही हैं, ये मुझे प्रैक्टिकली बताइएगा कि मुस्लिम महिलाओं का क्या रिएक्शन रहता है हिंदुस्तान के, आप मुआशरे में हैं चूंकि बीच में काम कर रही हैं, उनके क्या वो कहती हैं? मतलब घर में जो कहा गया है या जो निभाना पड़ रहा है कल्चर को, क्या वो खुद वैसा करना चाहती हैं या नहीं है उनके दिल में, लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है? क्या इस तरह की बातें आती हैं क्या कभी कभी? मैं पर्दे के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं बुर्के के हवाले से बात कर रहा हूं। पर्दे का तो साफ हुक्म है, उसको अपने ढंग से लेना चाहिए। बुर्के का ही जवाब दे रही हूँ आपको। बिल्कुल, हिजाब तो प्राइड है और जिसको करना हो वो करता है, जिसको नहीं करना उसको भी मना नहीं है। बुर्के के लिए कोई जितनी मुस्लिम महिलाओं से, अपनी बहनों से बात की है, कोई तैयार नहीं है। सबको लगता है कि जब हमने एक सूट पहन लिया, उसके ऊपर अननेसेसरी हम एक लबादा क्यों डालें? जब आप सूट ही पहन रहे हैं, दुपट्टा भी कैरी कर रहे हैं अच्छे से, तो दुपट्टे को आप सर पे भी ले रहे हैं। तो बहुत सारी मुसलमान बहनें कहती हैं कि ये अननेसेसरी हम पर थोपा गया है। और ये कहीं ना कहीं जो मौलाना साहब तो अच्छी बात कर रहे हैं, मैं खुश भी हो रही हूँ, शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ, लेकिन ये सब हमारे मौलानाओं ने तो बताया कि नहीं, जो हुजूर कह गए वो एक तरफ, अब जो हम आपको बताएंगे। इसीलिए अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम की जो हम बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अल्लाह ने हमें कुछ और बताया, फिर मौलानाओं ने हमें कुछ और बता दिया। अब ये बुर्के वाला सिस्टम से औरतें निजात पाना चाहती हैं। देखिए, आप सिर्फ सर्विस करने वाली लेडी के लिए क्यों सोच रहे हैं? घर में जो रहती है आप उसको भी तो बुर्का पहना के, वो बेचारी गली के बाहर तक भी कुछ लेने जाना है तो आप बुर्का पहनवाते हैं उसको, क्योंकि ये इस्लाम में लिखा नहीं बुर्के का कहीं भी, कुरान शरीफ में भी कोई जिक्र नहीं है। ये क्या हमारी बुर्का, मैं बुर्के पर्दे की बात नहीं कर रहा हूं, पर्दे का हुक्म है और उसको सब निभाएंगे, अपने हिसाब से निभा भी रहे हैं। पर्दे पर एक वर्ड नहीं कहा है किसी ने भी। लेकिन क्या बुर्का हमारी अपनी एक समाजी प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तानी माशरे की। बिल्कुल, इसको आपको हमें दूर करना पड़ेगा। इसको आपको हमें, जैसे अभी मुफ्ती साहब सिखा रहे हैं कि कहीं भी
زبردستی کوئی کالا چولا پہن کر آپ کو گھومنا ضروری نہیں ہے. میں تو عمران بھائی ہمیشہ آپ کے مادھیم سے کہتی ہوں کاش ہمارے مولانا ہمیں وہ چیز سکھاتے جو ہمارے قرآن شریف کی روشنی میں مسلم بہنوں کے لیے لکھی گئی ہے. جیسے 3 طلاق بھی نہیں تھا اور اس پہ آپ اور ہم نے دیکھا کتنی بحث چھڑی اور اس پہ رسوا بھی ہوئے بعد میں. اسلام دھرم بھی بدنام ہوتا ہے نا. ہم سے ہر کوئی پوچھتا ہے آپ کے دھرم میں یہ ہوتا ہے, آپ کے دھرم میں یہ ہوتا ہے, ان کو بھی تو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے غلط میسج دیا. آج آپ صحیح میسج دے رہے ہیں کہ مسلم بہنوں کو پردہ مطلب آپ سر کور کریں یا نہ کریں یہ بھی اس مہیلا پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ تو ایک مہیلا نے اگر یہ چلا رکھا ہے کہ حجاب میرا پرائیڈ ہے تو میرے کو بھی پرائیڈ ہے کہ میں ایسے بھی پورے سشکت ہو کر اور اچھی طریقے سے شریف اور ایمانداری سے کام کرتی ہوں, تو یہ بھی میرا بھی پرائیڈ ہے. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے شروع سے جو ان کے دماغ میں بھر دیا ہے کہ جی ایک کالا برقع ضرور ہوگا تب وہ مسلمان عورت سیف رہے گی اور اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اس کے بہانے ابھی راسٹ کے اوپر بھی بات آ گئی, اتنی بڑی بات کہی صبحی نے کہ برقعے میں کوئی اور ہی, میں کہہ رہی ہوں مسلمان کی تو چلیے آئیڈینٹی چھپ رہی ہے, مسلمان کے بہانے بھی تو کوئی کچھ کر سکتا ہے. کوئی برقع پہن کے غلط کام کرتا ہے تو مسلمان نے کر دیا, کوئی برقع پہن کے کوئی دیش کے خلاف کچھ کام کر دے تو مسلمان نے کر دیا. تو یہ بھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کہیں برقعے کے پیچھے ہمارے اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے کام بھی نہ ہوتے رہے. یہ سب بھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور چناؤ میں مطلب یہ بات نکل کر آ رہی ہے سامنے کی پردے کو لے کر کے کسی کو کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں ہے. پردہ ویسے بھی حکم ہے شریعت کے حوالے سے. آپ کسی عمران بھائی آپ کسی ایک لڑکی کے بارے میں بتائیے جو شرم حیا نہ رکھتی ہو, ہر عورت کو. ایون میں تو کہوں گی کہ جو پروسٹیٹیوٹ بھی ہوتی ہیں ان کو بھی شرم حیا ہوتی ہے. میں ان کے لیے بہت کام کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں ان کو بھی شرم حیا ہوتی ہے. ان کے بھی دل میں جیسا ایک عام لڑکی کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ویسا ہی سسٹم ہوتا ہے. لیکن صرف ان پہ برقع تھوپ دینا, پھر اسے اسلام دھرم سے جوڑ کے بتانا کہ جی اب آپ سیف ہو گئی ہیں. کیا برقع والی عورتوں کے بلااتکار نہیں ہوتے ہیں؟ کیا برقع والی عورتوں کے ساتھ فزیکل ٹارچر نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ سب بھی تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. آپ عورتوں کو کسی جد میں مت باندھیے. جو ہمارا اسلام دھرم ہے پروگریس کرنے دیجئے, بڑھنے دیجئے آگے. صبح پوری طرح سے ڈھکنے کو لے کر کے آپ لوگوں کو بھی کچھ اعتراض ہے پوری طرح سے ڈھکنے کو لے کر کے, جیسے کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ پوری طرح سے, کیونکہ عورت بہت عزت کی چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے, اس لیے اسے پوری طرح سے ڈھانک کر رکھو. نہیں عزت کی چیز ہے تو آپ عزت کریے نا. ابھی مفتی صاحب نے کتنا اچھا بتایا, آنکھوں کی شرم ہوگی تو آپ کے سامنے کوئی ویسے بھی آ جائے, بنا پردہ بھی آ جائے, آپ کو بہن بیٹی نظر آئے گی. تو اویئرنیس تو مسلم پرشوں کو ضرورت ہے کہ آپ دھیان رکھیے اپنی آنکھوں کا. قادری صاحب سو وہی مطلب کہیں نہ کہیں ہندوستان کے معاشرے کی اگر ہم سماج کی بات کریں, مسلم سماج کی بات کریں, مطلب پردے کو لے کر کے تو کوئی ایسا بہت زیادہ وہ حکم ہے جو فالو کر رہا ہے. میں سوال نہیں سمجھی. مطلب برقعے کو لے کر تھوڑا اعتراض ہو سکتا ہے کچھ خواتین میں جیسا کہ آپ لوگ بتا رہی ہیں. جی دیکھیے بالکل میں وہی بول رہی ہوں کہ دیکھیے بہت ساری مہیلائیں نہیں کرنا چاہتی ہیں مجبوری میں کیونکہ ان پہ تھوپ دیا جاتا ہے. آپ ایک طرف تو بولتے ہیں, میں ایک اور بتاتی ہوں کہ دیکھیے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 بولتا ہے نو کمپلشن ان ریلیجن, کہ ریلیجن میں کسی طرح کا کوئی کمپلشن نہیں ہے. ابھی مفتی صاحب نے بھی اس کا عربک میں آپ کو ورژن بتایا تھا. تو دیکھیے میں یہی بولنا چاہتی ہوں کہ جب تھوپ دیتے ہیں آپ کسی کے اوپر, دیٹ ٹو اسلام کی روشنی میں بتا کے, جو کہ ایکچولی میں قرآن کہتا بھی نہیں ہے, تو وہ ایک عورت کی مجبوری ہو جاتی ہے. برقعے کو تو میں بولتی ہوں نہ تو اسلام کے حساب سے وہ ایکسیپٹیبل ہے, نہ ہی جسٹیفائیڈ ہے, اور نہ ہی ایک نارمل سماج اور کنٹری کے حساب سے جسٹیفائیڈ ہے. حجاب جہاں پہ مہیلائیں کرتی ہیں وہ ایک ماڈسٹ ڈریسنگ ہے, ایک مہیلا کا رائٹ ہے, جیسے وہ ساڑی پہن سکتی ہے, حجاب بھی کر سکتی ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی آبجیکشن ہونا چاہیے. اور اس میں قرآن میں بھی کوئی بہت زیادہ ریجڈ ورسز نہیں ہے اس کو لے کر بھی. بس یہ ہے کہ آپ ماڈسٹلی ڈریس کریے, یو شوڈ کور یور باسم, چیسٹ کورڈ ہو, آپ کی باڈی کورڈ ہو, بہت زیادہ ولگر وہ اعضاء جن کو دیکھ کر کوئی اٹریکٹ ہو, وہ ساری چیزوں کو خواتین کو کور کرنا چاہیے اگر وہ چاہیں تو.
जी इमरान, हर पंथ में अश्लीलता कोई भी पंथ प्रमोट नहीं करता है, तो कोई भी पंथ नहीं करता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि इस्लाम को ना, मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि इतना रिजिड बना दिया गया है मुल्लाओं मौलानाओं द्वारा, कुछ ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स द्वारा, कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा, कि सब कुछ इंटरनेशनल पावर्स है, सब लोगों ने मिलजुल के इतना ज्यादा बदनाम कर दिया इस्लाम को कि हर चीज में फोकस जाके इस्लाम पे हो जाता है, हर चीज में बदनाम होता है इस्लाम, हर चीज में बदनाम होते हैं प्रॉफिट। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ये बुर्का तो बिल्कुल बुर्के पे तो बात ही करना हम लोगों को खत्म कर देना चाहिए, और अगर बैन भी कर दें या बंद भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम विमेन को या मुस्लिम मेंस को भी कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो कोई इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है। कादिर साहब, अब मैं आपके पास आऊंगा, जो आपने शुरुआत की थी मर्दों के हवाले से भी, क्या पर्दा है इस्लाम में, और है तो किस तरह का पर्दा है मर्दों के लिए? देखिए इमरान भाई, दूसरे पारे की एक आयत है, और मैं उन तमाम लोगों से भी अर्ज करूंगा जो इस टाइम हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं। कुरान साफ कहता, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। उर्दू, ला इकराहा फिद्दीन में जबरदस्ती नहीं है। दीन ने किसी चीज को इंसान या इंसानियत, मर्द या मर्दानियत, औरत या औरतियत पर थोपा नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, अपने हिसाब से उसको राइज किया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने हर नफ्स को, हर जान को, हर मर्द को, हर औरत को, हर उसको जो जी रूह है, जी अक्ल है, उन हैवानात से अलावा जिनको नहीं, अहकाम इंसानियत के लिए आए हैं, हैवानों और जानवरों परिंदों के लिए नहीं आए हैं, उनको वो इतनी ही तकलीफ देता है जिसके वो मुकल्लफ हैं, जिसको वो बर्दाश्त कर सके। मर्द के, अब ये औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी। यह आयत की तखसीस ना मर्द के लिए है ना औरत के लिए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला हर नफ्स और हर जान, नफ्स से भी मुराद मर्द औरत है, जान से भी मुराद अल्लाह ताला ने नफ्स लिए, उनको इतनी तकलीफ देता जिससे वो बर्दाश्त कर सके, जिसको वो अहकाम कर सके। इसीलिए आपने सुना होगा शब मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी, लेकिन मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार माफ कराते रहे। पूछा गया क्यों? कि मैं जानता हूं कि मेरी उम्मत इस नमाज को पूरा नहीं कर पाएगी, सुस्ती में डाल देगी, काहली में डाल देगी। गरज ये हुआ कि आते रहे, जलवाए महबूब देखते रहे, आते रहे, 5 वक्त की नमाज रह गई। इसलिए मेरे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते थे इस उम्मत पर 5 वक्त की भी नमाज इतनी शाक हो जाएगी, इतनी दुश्वार हो जाएगी कि 5 वक्त की नमाज भी पूरा नहीं। लेकिन ये तो बताइए कादिर साहब, मर्दों के किस तरह के पर्दे का जिक्र किया? मैं उसी तरफ आ रहा हूं मेरे भाई, ताकि मैं यहीं से बात निकलेगी। इतने शाक अल्लाह मेरे महबूब ने कितनी मर्द और औरत के लिए किया। आज मुसलमान दुनिया में चीख रहे हैं, कितनी खुदा की इबादत कर रहे हैं, कितनी मर्द औरतें नमाज पढ़ रहे हैं। 2% से कम मर्द औरत हिंदुस्तान में बगैर किसी तखसीस के नमाज पढ़ते हैं। मर्द के लिए पर्दा नाक से लेकर घुटनों के नीचे तक है, वो इतना पहले। आजकल तो ऊपर वाली चड्डियां भी हैं, उनको क्यों नहीं कहते? और आज सैंडू बनियान ऊपर से सीने से लेकर पेट तक आदमी खुला भी रखे तो उसके आज़ा ऐसे नहीं है जो आदमी को शर्म आल लगे। आदमी की शर्मगाह का वही हिस्सा है जिसको हम और आप तसव्वुर करते हैं, क्योंकि नेशनल चैनल है में उसमें मतलब वही चीज है। अब नजरों के पर्दे के हवाले से देखिए भाई, वो मैं बार बार जिस चीज पर जोर दे रहा हूं, वो निगाहें चाहे मर्द की हो चाहे वो औरत की हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, एक वाकया मैं आपको सुना दूं जिसको दुनिया कहती है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर के चबूतरे पर खड़े हुए थे। बरेली का वाकया है, पूरी दुनिया ने इसको जाना। वहां से चंद औरतों का गुजर हुआ, वो खड़े हुए थे। जब औरतें उनके करीब आईं, वो छोटे थे, तो उन्होंने अपने कुर्ते का, कमीज का, जो भी वो पहने हुए होंगे, उन्होंने अपनी आंखों को ढक लिया। औरतें निकली चली गईं। औरतों ने कहा यार ये बच्चा कैसा है, इसने शर्मगाह को तो खोल दिया और आंखों को बंद कर लिया। वो औरतें बेचारी अपनी बाजार में जो भी काम को थी वो चली गई। कुछ लोग उनके करीब आए। इमरान भाई, ये आला हजरत के बचपने का वाकया है, जिम्मेदारी के साथ मैं इसको अर्ज कर रहा हूं। उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों? थोड़ा जल्दी, बचपने का आलम है। कहा सबसे खतरनाक अगर कोई जिस्म का हिस्सा है वो आंख है। अगर आंख देखती है तो नफसानियत भड़कती है, इसलिए मैंने आंखों को छुपा लिया। जब आंखों ने नहीं देखी
होगी तो मेरे आज़ाए शर्म वाले हरकत ही नहीं कर सकते, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बुरके को छोड़ो, रिदा को छोड़ो, पर्दे को छोड़ो। अगर तुम अपनी आंखों की हिफाजत कर लोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारे समाज में, तुम्हारी कौम में, तुम्हारी बरादरी में एक नेक नामी पैदा होगी। जिन दुश्वारियों से गुजर रहे हैं वो दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। मतलब आंखों के पर्दे का बड़ा हुक्म है मर्दों को अपनी सीमा, अपनी पहचाननी पड़ेगी, जो उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से ख़वातीन के साथ व्यवहार करना है, दिल छुपा है, उनके साथ किस तरह से रहना है और किस तरह से माशरे में उनके साथ समाज में व्यवहार करना है, ये भी देखना समझना होगा। तो बहुत चीज़ों का इंकशाफ हुआ है आज। इस चर्चा को हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये तो बात निकल कर आई कि पर्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा इसको लेकर के समाज में खास हिंदुस्तानी मुस्लिम माशरे में बहस तो नहीं है, लेकिन हाँ बुर्के को लेकर के ये है कि भाई इसको हम किस रूप में देखें, क्योंकि वो चेहरा कवर करने के हवाले से मेरी दोनों बहनों ने, इमरान भाई जो जिक्र किया सही है, इसको आतंकवादियों ने भी इस्तेमाल किया है, मर्दों ने भी इस्तेमाल किया है, ये सही कह रही हैं, क्योंकि ये क्या कह रही हैं, वो मीडिया पर तमाम लोग उसको देखते हैं, बुर्का ओढ़ा और चले गए, साथ कोई औरत जा रही होगी, वो क्रिमिनल होता है, डाकू होता है, हर जगह ये हुआ है। तो ये बुर्का भी कोई नहीं है, बस वो मैंने जो शुरू में बताया एक ऐसा कपड़ा, वो किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन चूंकि अब राइज हो गया काला ही पहने, आजकल बहुत सारी कलर चेंज कर दिए हैं। सुबह ने तफसील समझाया कि वो किस सिस्टम के हवाले से कहां से वो चला आया है और कैसे उसको यहां पर फैलाया गया, इस पर भी गौर खोज करने की जरूरत है। वो जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहुत सेंसिटिव मसले पर बहुत समझदारी के साथ और बहुत ही इल्म के साथ अपनी बात रखने के लिए, जानकारी के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें लगता है देखने वालों के भी जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सी चीज़ों को जानने समझने का मौका मिला है।